बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, today we are going to discuss English MCQs of class 8 of the first unit. Has Muhammad sallallahu the model of tolerance? So share the correct option after proofreading. फर्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं. ये जो MCQs हमने डिज़ाइन किए हैं स्टूडेंट, इट इज़ जस्ट फॉर recapitulation your previous knowledge, how much you have understood and how much you have utilized your holidays, these quarantine days. So this is a sort of test for you. First, by tolerance we mean a fair and objective attitude towards those whose dash differs from us. बर्दाश्त से हमारा मतलब एक मुनासिब और बामकसद रवैया उन लोगों के साथ डैश डिफरेंस अस जिनकी हमसे मुख्तलिफ हो. क्या लाइफ स्टाइल, लाइफ एटीट्यूड, बिहेवियर. सेकेंड ऑप्शन जो है इज द वर्च्यू विच एनेबल्स अ पर्सन टू फॉरबेयर द एटीट्यूड, नेगेटिव रिमार्क्स, एक्शन विद पेशेंस एंड कामनेस. वो खूबी है जो एक शख्स को बना देती है कि वो बर्दाश्त करे एटीट्यूड को, नेगेटिव रिमार्क्स, मनफी राय दही को, एक्शन अमल को, एंड विद पेशेंस सब्र के साथ, एंड कामनेस और खामोशी के साथ. दिस वी हैव ऑप्शन ऑफ गुडनेस, लव, हार्मनी, टॉलरेंस. ओके, थर्ड, लेट्स कम टू द थर्ड MCQs. It is his tolerance, ये उसकी बर्दाश्त थी, that led him dash his worst enemy, जिसकी वजह से उसने बदतरीन दुश्मनों को क्या किया? Forgives, माफ़ किया. Forgive, correct option, forgiving. So you take help from the your book. The correct option will be there. While dash in Islam in Makkah, the Quraysh ostracized him and his family Banu Hashim. While dash preached, preaches, and preaching. Here you will use the correct verb. While preaching, while preached, while preached, preaching. There lives dash a valley called Shaib Abi Talib. They lived, वो रहने लगे. अवेली एक वादी में, काल शेब अबी तालिब. एट आता है करेक्ट प्रपोजिशन, आप आता है बिटवीन या इन. सिक्स नंबर we have the believers had dash no means of income and they were leading a very tough life for a period of 3 years. Has, had, has been, had been. So use the correct helping verb here. So it is talking about the past, so we have the past. Past we are using helping verb, it is mentioned here, so this is a clue for you in this MCQs. He dashed many times against the Prophet by Muhammad sallam, but the Prophet Muhammad sallam never did so. He dashed, tortured, तकलीफ देना, made, बनाया, insulted, बेइज्जती करना, plotted, मंसूबाबंदी करना. So use your common sense and read your text carefully. The story of Rabbi Zayd is one of such epitome of dash from Muhammad's practice. Learned, जो रबी ज़ैद की कहानी है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिसालों में से या नमूने में से, आमाल में से एक है. Learned, सीखने में, learn सीखा, learn सीखते हैं, learning सीखने से. Once Prophet Muhammad sallam was attending funeral of a man from Dash. एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लम एक शख्स का जनाजा पढ़ा रहे थे, पे हाजिरी दे रहे थे. अंसार क्या? मक्का, मदीना, कुरैश. So you have to use your common sense for this answer. The correct answer will be here. After the funeral prayer, the Holy Prophet Muhammad ﷺ sat down close to a wall, a tree, mosque, mountain. So here the correct option is available. जिन नमाज जनाजा के बाद जो है हज़रत मोहम्मद ﷺ एक दीवार के करीब
या एक दरख्त के करीब, या मस्जिद में, या एक पहाड़ में तशरीफ ले गई. He grabbed the Prophet sallam dashed the edges of the cloak. उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लम को चौक के किनारे से पकड़ा. 8 by 2 from. After seeing what the Rabbi did to the Prophet, Hazrat Muhammad sallam's eyes swelled with anger. After seeing, इसके देखने के बाद, what the Rabbi did, जो रबी ने किया to Prophet Muhammad sallam, मोहम्मद सल्लम के साथ, हज़रत डैश eyes swelled with anger. तो हज़रत सदीक रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु, किसकी आंखें जो है वो गुस्से से स्वेल हो गई. So in 13 option 13 MCQs we have. Hazrat Umar radhiyallahu went to the Rabbi, repaired him the debt and gave him an extra dash sa of debt. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु रबी के पास गया और उनको कर्ज की अदायगी की और डैश एक्स्ट्रा डेट की दी. 20, 50, 30, 10. द रबी ज़ैद फोन, रबी ज़ैद को मालूम हुआ दैट टॉलरेंस के बर्दाश्त एंड डैश और लव परसिवेयर इन सिंपैथी एम्पैथी. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है द रबी फोन, रबी ज़ैद को मालूम हुआ दैट टॉलरेंस के बर्दाश्त एंड डैश टुक प्रिजन, सबकत ले गई और एंगर और वसी पर एंड दैट हार्श ट्रीटमेंट और उस सख्त रवैये का बदला जो दिया वाज रिपेयर्ड विद काइंडनेस, वो मेहरबानी के साथ दिया गया. द टॉलरेंस ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लम न्यू डे नो डैश लिमिट्स बाउंड्री बाउंड्स एंड हॉरिजन. हज़रत मोहम्मद सल्लम की बर्दाश्त की कोई इंतहा न थी. बाउंड्स, बाउंड्री, लिमिट्स, हॉरिजन. An adjective or adverb that provide additional information is dash. Adjective और या adverb जो additional information देता है उसे क्या कहते हैं? Vivid verb कहते हैं, phrase कहते हैं, clause कहते हैं, modifier कहते हैं. This is also available in your book exercise, so you can take help from your book exercise as well as that we have done in the lectures. Okay, next 17 number word are phrases that carry a thought from one sentence to another. वो word are phrases जो एक आइडिया को या एक ख्याल को दूसरी सेंटेंस के साथ मिला देता है, एक आइडिया को दूसरे के साथ from one paragraph to another are called, एक पैराग्राफ को दूसरे के साथ मिला देता है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल डिवाइस कहते हैं, phrase कहते हैं, preposition कहते हैं या determiners कहते हैं. Okay, a dash of locust attack the crops. फ्लॉक जो लोकेस्ट होते हैं क्रॉप पे, जो हशरात होते हैं वो अटैक किए हैं. तो हशरात के लिए ग्रुप ऑफ, यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन यूज होता है. फ्लॉक, स्वार्म्स, हर्ड, गैंग. अ डैश ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट. हर्ड, swarm, flock, bouquet. So here is the correct option is available. As we drove down the countryside, we saw a dash of sheep grazing in the field. Flock, cluster, fleet, herd. तो यहाँ पर flock, cluster, fleet, herd मवेशियों के लिए कौन सा जो कलेक्टिव नाउन्स यूज होता है यहाँ पर अवेलेबल है. I expect our team to win. Our team to win. The underlined part is dash praise. जो अंडरलाइन पार्ट है ये कौन सा प्रेस है हमारे साथ? नाउन प्रेस है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, रिलेटिव प्रेस है. तो ये आपको ऑप्शन दी गई है और ये हमने डिस्कस की है पहली ही यूनिट में. डू यू नो हिज एज? द अंडरलाइन पार्ट इज डैश प्रेस. ये हमारे साथ कौन सा प्रेस है? एडजेक्टिव प्रेस है, नाउन प्रेस है, एडवर्ब प्रेस है, प्रीपोजिशनल प्रेस है. So it is also available in the lectures that we have done. The messenger of Allah ordered me to give it to you because I dash you.
अल्लाह के पैगंबर ने मुझे ये हुक्म दिया है कि ये मैं आपको दे दूं, क्योंकि डैश आई डैश यू, क्योंकि मैंने आपको कराया है, रिपेयर्ड दिया है, शोर दिखाया है, फ्राइट एंड डराया है, रिनाउंस दस्तबरदार किया है। द वर्ड काइंडनेस इज डैश, नाउन है हमारे साथ, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। द वर्ड रूडनेस, ये हमारे साथ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। So these are this is your MCQs from first to 25. After the discussion of the hundreds MCQs, we will give you a key. So आपके पास एक पेज होनी चाहिए और इस पे ये MCQs आप इसके करेक्ट ऑप्शन को टिक कर ले या ABC ऑप्शन दे दे। पहले आप एक सीरियल बना दे 1 2 3 1 2 25, ठीक है। इस पे आज का डेट डालें और इस पे MCQs जो है ABC, फिर आप करेक्ट ऑप्शन जो भी आपको लगते हैं वो टिक कर लें। फिर आप देखिए कि आपके खुद ही चेकिंग करें कि कितने मार्क्स बनते हैं, कितना आपने इम्प्रूवमेंट की है, कितना आपने स्टडी की है। इट विल शो योर स्टडीज।